अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। आज हम इंग्लिश का सब्जेक्ट पढ़ेंगे और हम चैप्टर नंबर 7 पढ़ने लगे हैं, द एडवेंचर ऑफ द डाइंग डिटेक्टिव। दिस चैप्टर इज़ अबाउट द डिटेक्टिव शर्लक होल्म्स हु हैव टू अरेस्ट द मिस्टर कल्वर्टन बट ही हैज़ नो प्रूफ to approve his crime. That's why to prove the Culverton that he is a criminal, that's why he have to act. Sherlock Holmes' landlady came to my house. She looked worried and explained, Holmes is dying, Dr. Watson. The morning I could stand no more of it. I said, thank. With you, leave or without it, Holmes, I am going for a doctor. This he replied, let it be. I was horrified and I heard nothing of his illness. फर्स्ट पैराग्राफ में बताया गया कि शर्लक होल्म्स की जो लैंडलेडी थी, ही इज़ वेरी वरीड अबाउट द होल्म्स एंड ही इज़ टॉकिंग अबाउट विद द डॉक्टर वैटसन टू क्योर द शर्लक होल्म्स. In the next paragraph, the description of the Holmes is given, that telling about us about the condition. He did indeed look terrible. His gaunt, wasted face staring at me from bed sent a chill to his heart. ये सारी उसकी डिस्क्रिप्शन बताई गई है कि वो किस तरह उसने अपने आप को, होल्म्स ने किस तरह वो बीमारी में एक मुब्तला था. उसके बाद डॉक्टर वैटसन आया था, डॉक्टर एंस्ट्री आया था, जो कि उसके ऊपर चेक कर रहा था और उसको बता रहा था कि क्या आप स्मेट्रा गए थे, वहाँ से आपको एक डिज़ीज़ लगी है, दैट इज़ नॉट क्योरेबल, दैट इज़ अ एशियाटिक डिजीज़ और इसका कोई क्योर नहीं है. उसके बाद इट मे बी यू सरप्राइज द मैन अपॉन द अर्थ हु नो अबाउट दिस डिजीज़ इज़ नॉट अ मेडिकल मैन बट अ प्लांटर. उसने कहा कि आप ये जान के बेशक सरप्राइज़ होंगे कि जो कि इस डिज़ीज़ के बारे में जानता है वो कोई डॉक्टर नहीं बल्कि एक प्लांटर है, जो कि मिस्टर कल्वर्टन स्मिथ है. वही इस डिज़ीज़ के बारे में जानते हैं और वो स्मेट्रा में रहते हैं. अगर आप चाहते हैं कि आप ठीक हो जाएं, देन यू हैव टू कॉन्टैक्ट हिम. फिर अब हम नेक्स्ट पेज पे आ रहे हैं. नेक्स्ट पेज पे फिर वही डिस्क्रिप्शन बताई हुई है कि उसने अपने एक सर्वेंट को कहा, होल्म्स ने जाओ और जाके कल्वर्टन को यहाँ पे लेके आओ. आई थॉट व्हेन ही reached the Culverton house and he talked about the Holmes condition with the Culverton, then the Culverton become very happy to hear the condition of the Holmes and he give a very strange smile that make him terrible. After some time, on the request of the servant, Culverton, when he came to know that Holmes is going to die and he is on his last breath, then he said, "Chalo, I will come with you." Culverton Smith smiled pleasantly, picked up his cap. "I will come with you," and said. After that, he reached Mr. Holmes' house, and there he came and take a look at the Holmes, and after his curious investigation, he think that Holmes is going to die. Then he said, well, I should not be surprised, Holmes. Poor Victor was a dead man on the fourth day. Victor was the nephew of the Mr. Culverton Smith. He said to Holmes, it's not a big deal. You are also going to die on the fourth day, as my nephew also died on the fourth day, because the both of you have the same Asiatic disease. In the heart of the London, a disease, two of which I had made very special study, very smart to you as not dead, but rather uncharitable to suggest that it was a cause and effect. You are precious, near you are my friend, but I don't want you to go till I have had a word with you. That's why I give you water. अब उसे कह रहा था कि मैं तुम तो वैसे ही बनने वाले हो, तो that's why I'm going to tell you a secret. कि do you remember a box, ivory box? It came on Wednesday by post. You open it. Do you remember? कि तुम्हें याद है कि तुम्हें एक बॉक्स पोस्ट ऑफिस से आया था, क्या तुमने उसे खोला था? On that, Holmes, yes, I opened it. There was a sharp spring inside. It smoked. Some chalk. It was a chalk. I sent it. If you had left me alone, I would not hurt you. Then Holmes said, क्या अब कोई चौक था? तो कल्वर्टन ने कहा, no, it's not a chalk. मैं अगर तुम मेरे पे इतनी इन्वेस्टिगेशन ना करते तो मैं तुम्हें जाने देता, लेकिन अब तुम्हें उस एवरी बॉक्स में जो स्प्रिंग नीडल थी उसकी वजह से इस दुनिया से जाना, रुखसत होना पड़ेगा. Then the Holmes grasped. I remember the box on the table, the spring in the dew blur.
एंड इट वॉज लीव द रूम इन माई पॉकेट। हाँ, ये मेरी पॉकेट में पड़ा हुआ है और मैंने हाँ उसको टच भी किया था। तो इस on that Kilverton's we turn up the gas. Anything else? Light a candle. I nearly out in my enjoyment and excitement. Holmes was speaking in his natural sound. There was a long pause, and I felt that Kilverton's meeting was standing in silent amazement, looking down at my at my companion. जब उसने देखा कि होल्मस तो बनने वाला, तो उसने कहा कि मैं अब लास्ट एविडेंस की है जो अपने साथ ले जाऊंगा और किसी को नहीं पता चलेगा कि तुम भी किस तरह सेविज की तरह इस दुनिया से रुखसत हो गए। एंड डैट अपनी एक्साइटमेंट में होल्मस कैन नॉट कंट्रोल हिज सेल्फ एंड ही शाउटेड इन एक्साइटमेंट, विल यू गो, कि तुम यहाँ से जा सकते हो? व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस? आई हर्ड कल्वर्टन स्मिथ एट लास्ट इन ड्राई रैपिंग ट्यून, द बेस्ट वॉज सक्सेसफुली एक्टिंग अ पार्ट। और फिर उसे पता चला कि जो होल्मस था वो सारी एक्टिंग कर रहा था। उसने उसे बताया कि वो उसने 3 दिन से कुछ नहीं खाया था, जिसकी वजह से उससे ना ही बोला जा रहा था और इसकी ये अपीयरेंस हो गई थी। डोर ओपन एंड द इंस्पेक्टर मॉर्टन इम्पेयर्ड, दिस इज़ योर मैन, सेड होल्मस। होल्मस ने कहा ये तुम्हारा बंदा है, पकड़ लो इसे। आई अरेस्ट यू ऑन द चार्ज ऑफ द मर्डर ऑफ द विक्टर सेविज, सेड इंस्पेक्टर मॉर्टन, एंड यू माइट ऐड ऑफ द अटेम्प्टेड मर्डर ऑफ द शर्लक होल्मस रिमार्क्ड माई फ्रेंड। फिर उस पर इंस्पेक्टर मॉर्टन ने हैज़ अरेस्टेड द कल्वर्टन स्मिथ और उसको बताया कि जो तुम्हारी सारी दिस इज़ अ ट्रैप इन विच यू कम एंड यू डिस्क्लोज योर सीक्रेट्स, नाउ इट्स योर टाइम टू फुलफिल योर पनिशमेंट। अब हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और इसकी एक्सरसाइज में डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं। अब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात करेंगे जो कि पेज नंबर 43 पे आप लोग की बुक पे दिए हुए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन करवाऊंगी। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आप लोग को डिफरेंट काइंड की सिचुएशन दी जा सकती हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आपको आई गिवन होगा तो वो ही और शी में कन्वर्ट होता है और इसके साथ सेट वगैरह यूज़ किया जाता है। कॉमास को हटा के डैट लगा दिया जाता है और अगर माई हो तो उसको ही हर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। जैसे यहाँ मैंने लिखा हुआ है आई राइट, ही सेड, मैंने लिखा उसने कहा। तो अगर मैं अब मेरी मर्ज़ी है, मैं बेशक इसको ही में कन्वर्ट करूँ और शी में कन्वर्ट करूँ। तो जैसे मैंने लिखा है शी सेड डैट, कॉमा को मैंने रिप्लेस कर दिया डैट के साथ, शी सेड डैट। आई राइट, ये प्रेजेंट डेफिनेट था, प्रेजेंट डेफिनेट नहीं रहेगा, शी राइट्स। इसी तरह अब नेक्स्ट कंडीशन है आई एम राइटिंग, मैं लिख रही हूँ। अब मैंने इसको कन्वर्ट करना है तो आई जो कन्वर्ट हो जाएगा ही में। ही सेड, उसने कहा, फिर उसके बाद डैट, ही सेड के बाद हमेशा डैट आता है। शी वॉज राइटिंग, वो लिख रही है। इज़ एम आर हमेशा कन्वर्ट होता है वॉज और वर में। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस कन्वर्ट इनटू पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। उसके बाद थर्ड कंडीशन है, उसमें उन्होंने लिखा हुआ आई हैव रिटन, मैंने लिखा, मैं लिख चुका हूँ। तो अब इसमें ही सेड डैट, ही हैव जो है वो हमेशा हैड में कन्वर्ट होता है। ही हैड रिटन मीन्स हैज़ और हैव अगर गिवन होगा तो वो हैड में कन्वर्ट होगा और साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ठीक है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमेशा पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। आई शैल राइट, शैल जो है वो हमेशा शुड में कन्वर्ट होता है तो इसका हो जाएगा ही सेड ही शुड राइट। मे होगा तो वो माइट में कन्वर्ट होगा। डिड और वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो वह हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होती है। इसी तरह अगर वॉज वर गिवन हो तो वॉज वर कन्वर्ट नहीं होता, वो वॉज वर में ही रहता है। कैन गिवन हो तो वो कुड में कन्वर्ट हो जाता है।